Abhimanyu, the fastest feet. इनकी भूख, प्यास और कला की जिम्मेदारी भारी है, सिर्फ भारी। लाखों की लाखों खत्म हो गई। इधर वास्ते पानी नहीं तो धान का कैसे उगेगा? अगर यही हाल रहा तो हम सबको हमारा ये Hello. You're wasting your talent. Come with me. How are you? How are you, everybody? We are back again. We are back again with episode 1, season 3. Oops, I said it. And it's always nice to speak. It is always nice to speak. बोलना तो चाहिए, बोलने की जिम्मेदारी तो हमारी. And let's wait for somebody very special, a hunk out here, I must say. So a very handsome dancer, somebody who has been a path breaker, and we are waiting for Sandeep Mahavir Kathak, or should I say Abhimanyu. So देखते हैं संदीप जी कब तक आते हैं, तब तक हम अपनी मस्ती मारते हैं. और क्या किया आपने सारा टाइम? How did you spend your days? Well, what did I do? I just did my home a little bit, here and there. And it has been quite good कि मुझे करने का मौका मिला, घर को सजाने का मौका मिला. And you know what? I was trying to get the pulse of all the artists who are going to come in this episode and is in this season 3. तो मुझे था कि मैं देखूं कि वो कैसे हैं. और संदीप जी, where are you? We're waiting for you. कहाँ हैं आप? Let's hope he joins us fast. Till that time, can we put on some music for you? Let's put on some music for all of you till the time he comes. Oh, hi, handsome. How are you? Hello, how are you? Namaskar. सब लोगों को मेरा प्यार और it's great to be on your show. Thanks, Sandeep ji. It's lovely to know you and good that we could become friends recently. And मैं ऐसे भी आपके prelude में बोल रही थी, there's a very nice handsome hunk coming to our show. And I always say it is nice to flirt. Am I flirting online? Am I allowed to flirt with you? Sandeep ji? Always. I got a shocker कि जवाब नहीं आ रहा. मैं full on flirting कर रही हूँ इनके साथ और ये मुझे जवाब नहीं दे रहे कि क्या हो गया. मैंने कहा I always say that even a woman should be allowed to flirt. Why should it be only a man's territory to flirt? Innocent flirting is good. Of course. It's Of good. course, No? it's healthy. It's healthy. Yeah, that's good. So I got my cue. So Sandeep ji, lovely knowing you, and definitely आपको बहुत लोग follow करते हैं. मैं भी आपका काम देखती रही हूँ. And you have done path-breaking work. You have done path-breaking work. But the thing is that आपको और थोड़ा जानने का मन है अब. बिल्कुल बिल्कुल. और ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है. It's such a beautiful thing that you're doing. Usually I actually don't really come on shows, but I've been actually following you, and the passion that you drive is just amazing, and that is what actually I've come on your show for. Thank you. That's really very sweet of you, and definitely it makes my day when you say that you followed me. So I started following you too. I always followed you. So संदीप जी, जैसे हम आपको जानते वर्चुअल वर्ल्ड से, हम आपको जानते आपके काम से, आपने जो जजमेंट्स की हैं, आपने जो अभिमन्यु किंगडम ऑफ ड्रीम्स में किया है, बट हम आपके जीवन के बहुत सारे पहलू नहीं जानते हैं.
जी जी। I would like to know, I know you're from Mumbai, but where is your base? आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, आप कहाँ से हैं और आपका परिवार कहाँ से है? तो कहाँ से हम हैं, बेसिकली हम वी आर फ्रॉम राजस्थान, Okay. पर हमारे दादाजी जो थे पंडित महादेव प्रसाद जी, Mm-hmm. वो अमृतसर पंजाब में उनका रहना था। कलकत्ता से वो पंजाब चले गए और पंजाब में एक जगह है भैनी साहब, Okay. वहाँ पर जीवन नगर करके एक जगह है Mm-hmm. और वहाँ पर हमारे दादाजी रहते थे। और वहाँ पर जो सारे सदगुरु जी, हम नामधारी जो देखते हैं, जी, तो जी. बेसिकली माय grandfather was the one who actually has departed music in Okay. that नामधारी सदगुरु जी's fraternity. So वो वहाँ के गुरु थे। अच्छा. और जो हरवल्लभ फेस्टिवल आज जो सारे लोग जानते हैं, Mm-hmm. was started by my दादाजी as a proper classical thing. Mm-hmm. Mm-hmm. तो हमारे रूट्स राजस्थान के भी हैं और पंजाब के भी हैं। और फिर हमारे मेरे 2 ताया हैं और 2 चाचा। तो हमारे सबसे बड़े ताए मदन प्रकाश जी, उनके बाद के पन्नालाल जी, उसके बाद मेरे पिताजी के महावीर जी, और उसके बाद सुदर्शन कत्थक जी, उसके बाद पंडित विश्व प्रकाश जी। जी. So पंडित विश्व प्रकाश जी, we are fortunate that he is there with us. He is in London. He lives in London. Okay. और सारे भाई ये सिंगर्स थे और Okay. अद्भुत सिंगर थे। सो उस वक्त दौरान में फिर हमारे पिताजी ने डिसाइड किया दैट ही वांटेड टू शिफ्ट टू मुंबई। Uh-huh. Okay. Okay. तो राजस्थान से पंजाब, पंजाब से महाराष्ट्र में वो आ गए थे और उन्होंने अपना काम यहाँ पर शुरू किया। Mm-hmm. तो उस वजह से हम परिवार को मुंबई नगरी मिली, एंड दैट्स Right. हाउ वी वर इन मुंबई। बट यू आर सेइंग कि आप कह रहे हैं कि आपके जो भी लिंकेज था, लेगेसी है, जी। दे वर सिंगर्स, राइट? वो All गायक थे, ऑल सिंगर्स। सो डांस आपको कैसे हुआ? मतलब हाउ कम यू वेंचर्ड इनटू डांस फ्रॉम दैट डांस फैमिली? हमारे खानदान में था ही। माय दादाजी यूज्ड टू कंपोज, राइट अ लॉट ऑफ डांस बंदिशेस एंड एवरीथिंग, और डांस भी था। पर प्रथम हमारे घराने में गायकी थी। राइट। और ओके। तो सिलसिला ये हुआ कि जब हमारे पिताजी यहाँ आ गए तो उन्होंने सबके साथ गाना शुरू किया। तो उनके साथ एक रिश्ता बना जो उन्होंने अपनी बहन बना लिया। डॉक्टर सारंग की 2 बेटियां थीं जिनका नाम था मधुरिता सारंग एंड बचपन। राइट। वो हमारा एक घर था, डैडी का मतलब घर था, और वो इतना प्यार था एक दूसरे में। और सारा उनका जो म्यूजिक था वाज कंपोज्ड बाय माय फादर। ओके। सो दे वर लाइक एवरी डे मॉर्निंग, मतलब हमारे दिन की शुरुआत जो होती थी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारी बातें होंगी आज, पर विस्तार में कुछ चीजें जो लोग नहीं जानते, एज यू सेड, आज टाइम का कोई बंधन नहीं है। आज बंधन तो वैसे भी हम लोगों में नहीं है। हाँ, बिल्कुल। I like that. बंधन वालों रिश्तों में मैं काम ही नहीं करता। बिल्कुल। बिंगो। तो ये हुआ कि हमारे पिताजी के जरिए से हमें ऐसे लोगों के साथ हमारा बचपन जो था, हमारी जब आंखें खुली तो लता मंगेशकर, आशा भोसले, हृदयनाथ मंगेशकर, चित्रा सिंह, मतलब सारे कलाकार, बिकॉज माय फादर यूज्ड टू टीच देम एंड ही वाज वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद द मंगेशकर फैमिली, बिकॉज लता जी ने उनके सारे गजलें गाए हैं और हृदयनाथ अंकल वाज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माय फादर। तो दिन भर की जो चर्या थी, जो हम लोग जब उठते थे और देखते थे, तो सुबह 8 बजे से सिर्फ पापा के पास लोग सीखने शुरू और आना जाना शुरू। तो वो सुरों में, और आज मतलब हम जैसे कहते हैं ना कि सरस्वती है लता मंगेशकर, और यकीनन है, वो कहते नहीं, यकीनन है। तो हमारा बचपन, सोचो कि ऐसे लोगों के सामने हम बड़े हुए, तो पीढ़ियां, मतलब हमें तो कुछ और जनरेशन, वी आर द 15th जनरेशन इन म्यूजिक एंड डांस, एंड 15th जनरेशन यानी हमारा सरनेम जो कथक है, इट्स नॉट माय सरनेम इज कथक, माय पासपोर्ट सेज कथक एज सरनेम। ओके, दैट्स लवली। या तो हम कथक परिवार से हैं। तो हमारे यहाँ से जो गाना बजाना गया या लोग सीख रहे हैं या जिन्होंने परफॉर्म किया, तो वो कहीं ना कहीं से इट वाज फ्रॉम आवर फैमिली, राइट। तो ऐसे लोगों के सामने परवरिश हुई जो आज दुनिया के दिग्गज लोग हैं। हमारे फादर वाज जस्ट एन एक्सेप्शनल पर्सन
in composing and singing, and my tayas also. Right. तो उस दरमियान में वो जाते थे मधु दीदी के पास, मेरे गुरु के पास, और हम उन्हें बुआ के नाम से जानते थे क्योंकि जाते थे। तो हम पेडर रोड पे रहते थे और उनका घर ओपेरा हाउस पे था। Right. और वो जब कंपोज करते तो हमारा बचपन में जाना था, देखते थे, तो वो एक फैसिनेशन था मेरे में कि मूवमेंट एंड डांस, एंड आई यूज्ड टू लाइक ऑल ऑफ। Yeah. फिर हमारे पिताजी का निधन हो गया, एंड How old were last you? How old I were you? was between 9 and 10. Oh, that's pretty young. Yeah, so my elder brother Dinesh Mahavirji, जो unfortunately हमने उन्हें भी lost him last year, and he was the father figure. उसके बाद मेरे दूसरे भाई हैं राजीव महावीर, तो इन दोनों भाइयों ने अपना घर का जिम्मा संभाला, and they started. So my elder brother was a singer. Rajiv Mahavir is a great tabla player. He started his journey. Today he's a music director. So मधु दीदी ने हमारे घर को संभाला। हमें डैडी जाने के बाद वो एक ऐसी एक वृक्ष था हमारे साथ में, परिवार में, कि हमारी उन तकलीफों में उन्होंने हमें, और उसी दरमियान में मेरा एजुकेशन और ये सब जो था, उन्होंने कहा कि नहीं तुम्हें करना है तो तुम मेरे पास आ जाओ, आई विल टीच यू। और एक दिन मजाक मजाक में उन्होंने, क्योंकि मैं देख रहा था कि मेरे दोनों भाई बड़े एस्टैब्लिश थे, एक गाने में एस्टैब्लिश थे, एक तबले में थे, तो मेरे लिए वैसे भी ऑप्शन कोई बचा भी नहीं था। एंड मैंने कहा कि एक ही घर में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, कुछ दूसरा प्रोफेशन हो तो ज्यादा बेटर है, सो वी कैन ऑल्सो शेयर स्टेज टुगेदर। Right. और मधु जी ने एक दिन अचानक से कह दिया, मैं दोपहर में घर गया था उनके, तो उन्होंने कहा कि अरे तू डांस क्यों नहीं सीखता है? Oh, wow. तो कुछ जवाब मैंने दिया नहीं, मैंने कहा हाँ हाँ, और मैं चला गया। फिर ऐसा हुआ कि वो भी भूल गई कि ठीक है भाई, महावीर भाई के बेटे को कहा था, व्हाटएवर। तो मैंने अपने कुछ पिगी बैंक में कुछ पैसे जमा कर रखे थे, और क्योंकि गुरु शिष्य का रिश्ता शुरू कैसे होता है, कैसे देखा जाता है, वो तो पता ही था, क्योंकि घर में सुबह शाम वो ही होता था। डैडी के पास सारे शिष्य आते थे, सीखते थे, पूजाएं होती थी। तो मैंने उसमें से पैसे निकाले और बिगर किसी को बताया घर में एक नारियल, एक मिठाई, अगरबत्ती खरीद के 4 बजे मधु दीदी के घर पहुंच गया। अरे वो देख के शौक, वो ये क्या ले आया? मैं बोला बस आपने कह दिया तो मुझे डांस शुरू करना है। Wow. तो वो एक सिलसिला ऐसा शुरू हुआ। वो उन्होंने मुझे सिर्फ शिष्य नहीं बनाया, आई वॉज लाइक अ सन टू हर। और फिर मेरी जिंदगी, मैंने उन्हीं के साथ, उन्हीं के घर पे रह के, उनके बेटे बन के उनकी सेवा की, और हमने वो रिश्ता शुरू किया। पर उसके बाद जब एक बार उन्होंने ट्रेन करना शुरू किया तो देवर लुकिंग बैक। यहाँ से मेरी ये डांस की जर्नी शुरू। मैंने आपके प्रोग्राम्स में देखा है जिस तरह आप अपने गुरुजी का मान रखते हैं, जिस तरीके से आप उनकी पूजा करते हैं, श्रद्धा करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आज की जनरेशन को सीखने के लिए। जो आपने कहा ना कि नारियल लेके गए, और ये इतना सुंदर हमारा एक संस्कृति है गुरु शिष्य का, और जो अपने आप को सरेंडर करना, समर्पण करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज बॉम्बे इज अ वेरी प्रोफेशनल वर्ल्ड, यू नो, लाइक it is a very professional world, and Delhi is different. Delhi is very, very different. We'll talk on Bombay, Delhi also. Yeah, we shall. So, and I must tell you, there are a lot of people who are watching us, Sandeep ji. Shreya Gupta, Nirmal Aluwalia, Ruchi Baloni, she's a Kathak dancer. Even Shreya Gupta dances. Pavika Basak, Tamanna Tikku, Anjali Munjal, Shraddha Singh, कुमुदिता तलवार से प्रणाम दीदी। कुमुदिता आज मेरे को मत देखो, आज जरा संदीप जी को देख लो। You know, there are very few handsome men in this world, so you should appreciate handsome men. So I'm sorry, I'm like this. Don't mind me. ये चलते रहना चाहिए। I'm enjoying. I'm actually enjoying to talk to you. You're absolutely so vibrant, so full of life, and that is what I like about you. Thank you so much, संदीप जी। जो आपका रिश्ता, इनफैक्ट आई एम वेरी हैप्पी कि आपने डांस चूज किया, बिकॉज विथ योर पर्सनालिटी एंड लुक यू शुड नॉट बी जस्ट बिहाइंड द माइक एंड इन अ स्टूडियो, यू ऑट टू बी ऑन द स्टेज। आपको स्टेज में ही होना चाहिए।
मैं Thank फुल ऑन फ्लर्टिंग कर रही हूँ, मुझे पता है, और मैं माफी नहीं मांग रही हूँ उस चीज की, क्योंकि इट्स हेल्दी फॉर लाइफ. ही सेड इट ऑलरेडी. ओके, सो डोंट माइंड इट. You मैं have all आज you मेरा have all the time. You can yeah. do as much as you want. Please tell your wife that it is only for this evening, that on this talk show that I'm flirting with you. That will decide later. Yeah. Yeah. जो आपका सफर है, लाइक मुझे आपसे पूछना है कि आपने बहुत सुंदर बैलेंस किया. लाइक आई हैव बीन वाचिंग यू, बट द रीसेंट वर्क दैट आई वॉच्ड ऑफ यू इज ऑफ महाराज जी का, जो आपने कोरियोग्राफी किया है मन भीतर. जी जी. And I watched it so many times, you know, I've watched it so many times. और मैंने scroll down किया. I just scroll down. I must say, you know, people, like I say, dreams come true. It actually comes true. मैंने scroll down किया and I just wanted to check on the choreographer. So I thought. Actually मैं यहाँ पे एक correction करना चाहता हूँ. कुछ जगहों पे शायद गलत print हुआ. I have directed the whole video. Oh wow. Choreography is of Rachna aunty. Okay, that's lovely. Okay, that's another. आपने आज वो भी किया, but the हम लोगों direction को itself. Yeah. You know, the direction, when you, it's a package, you know, when you come, you see something, Absolutely. it comes as a full package. So अगर correction भी हुआ है, पर वो खूबसूरत गलती है, मैं मानती हूँ. बहुत अच्छा है. बहुत अच्छा. तो when I scrolled down and I saw your name, I was like, okay, this man is doing a good job. I have to work with this person. And then, you know, we connected, and we know how we connected. वो secret है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगी. So, and it was like dream come true. And the way you balanced your Bollywood style and the classical style is marvelous, is commendable. So, ये आपने तालमेल कैसे, क्योंकि अगर मैं सही में बताऊं तो दिल्ली में अगर जैसे ही बॉलीवुड का आता ना तो नाक सिकुड़ जाती है. Honestly, it's hypocrisy. It's hypocrisy. But आपने जिस तरीके से बैलेंस किया, जो क्लासिकल की जो नजाकत को रखा, बॉलीवुड का ग्लैमर भी रखा, how did you balance this whole thing? क्या है, मैं बहुत सारी चीजें क्लैरिफाई करना चाहूंगा और बताऊंगा कि I don't know क्यों क्लासिकल डांसर्स a fraternity is against Bollywood. Firstly, अब अगर लोग सुन रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे सिर्फ फेसबुक का पेज ही दिख रहा है, I can't see people who are watching or listening. I'm sure there are all comments. बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, और चिंता मत कीजिए, क्योंकि लोग अगर अभी लाइव नहीं है वो पीछे जाके जरूर देखते हैं और YouTube तो जरूर चेक करते हैं. तो आपको ये भी पता है कि आर्टिस्ट लोग बहुत जल्दी लाइक नहीं करते हैं, क्योंकि we know the reasons behind it. There's so much of insecurity in our fraternity, but जरूर देखते हैं. ये तो मैं आपको मतलब well said. I agree with you here completely. So what I wanted to say is कि nutshell में I'll try to explain my journey. So when I started dancing, और बहुत छोटी उम्र में performances और ये और वो बहुत शुरू हो गए गुरु महाराज के आशीर्वाद से, मेरे परिवार और मेरे गुरु का. बेसिकली मेरा जो कुछ भी है वो मेरे मधु दीदी का ही है. सब मैंने जिंदगी में सिर्फ उनके चरण देख के ही सब कुछ किया है, और उनका चला जाना मेरे लिए एक बहुत बड़ा डार्क फेज है, एक ब्लैकआउट है, जिससे मैं कभी बाहर नहीं आ पाऊंगा. और उसके बाद मेरे भाई का भी ये हो गया, जो मेरे लिए फादर फिगर से. सो वो एक अलग ही जोन है. खैर, तो मेरे बॉलीवुड में एंट्री का रीजन ये था कि मैं बॉम्बे में मेरी परवरिश हुई है, जो हिंदुस्तान का दिल है. मुंबई नगरी जो है वो हिंदुस्तान का दिल है. कितने भी लोग बायस हों, कितना भी लोग कुछ कहें कि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, मैं वहाँ, एवरीबडी इफ दे हैव एन अपॉर्चुनिटी दे वांट टू कम टू मुंबई. एग्जैक्टली, सपनों की दुनिया है वो. एवरीबडी, सब उड़ के आते हैं, सब लोग को यहाँ आना होता है. और हम, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे पिताजी का वो डिसीजन जो था कि वी आर बोर्न एंड बॉट अप, सो वी नो द कल्चर ऑफ मुंबई, वी नो हाउ बॉम्बे वर्क्स. सो फ्रेंड सर्कल भी एलीट था, उठना बैठना क्लासिकल में भी बहुत बड़े लेवल में था, और जो कॉलेजेस और स्कूल के बाद में जो सर्कल बने, तो पीपल यूज्ड टू सी मी. सो 15 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में एक्चुअली, आई गॉट एन ऑफर ऑफ वन ऑफ द फ्रेंड, वो डैडी के ही कुछ रिलेशन में थे, वो इंडस्ट्री में काम करते थे, और एक बहुत बड़ा टीवी सीरियल बन रहा था. फर्स्ट टाइम इट वाज अ टीवी सीरियल ऑफ 500 एपिसोड. वाओ, व्हाट वाज दैट नेम? युद्ध. ओह, ओके, या. सो उसमें मुझे एक बहुत बड़ा मेजर रोल मिला, और मेरी लाइफ जो थी वहां से एक दो पटरियां जैसे होती हैं वैसे हो गई.
कि मैं 8 से 9 साल, मतलब आई यूज्ड टू शूट डे एंड नाइट. डे एंड नाइट इज नॉट द वर्ड, बट मैं सच कह रहा हूं कि मैंने कभी अपने डांस को इफेक्ट नहीं होने दिया, क्योंकि मैं दुनिया में सब कुछ कर सकता था, अपने गुरु को नाराज नहीं कर सकता. मेरे लिए वो उनका आदेश जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, बट उन्होंने मुझे रोका नहीं और मैं सीखता गया, करता गया. बहुत सारी चीजों की प्रैक्टिसेस हुई. दैट्स हाउ द बॉलीवुड एक्चुअली गॉट माय फ्रेंड्स. शेखर सुमन जी, XYZ, यहाँ से जर्नी शुरू हुई, क्योंकि मेरा सेकंड सीरियल उनके साथ था एंड ही वाज द किंग अमिताभ बच्चन ऑफ टेलीविजन. या आज हमारे रिश्ते को 27-28 साल हो गए हैं. आप देख रहे हैं कि आज भी हम लोगों का माय इंटरव्यू दैट आई जस्ट फिनिश्ड, ही वाज माय सेकंड गेस्ट. सो रिश्ते बनाकर उनको निभाना बहुत मुश्किल है, और अगर आप ये डोर को समझें लोग, आज रिश्तों की अहमियत खत्म हो गई है. हाँ. आज सब लैडर हो गए, Opportunist. अपॉर्चुनिस्ट. सो Yes. बेसिकली वी डोंट वांट टू गेट दैट. तो सारे लोग अपने रिश्तों को अगर थोड़ा सा मोहब्बत करें, प्यार करें और समझें, तो पता नहीं जिंदगी में क्या वक्त आएगा, आपको किसकी कब जरूरत पड़ जाए. Exactly. तो ये एक्टिंग के जरिए से आई स्टार्टेड लर्निंग सो मेनी थिंग्स. बट मुझे फोकस था, क्योंकि मुझे ये दिख रहा था कि मेरे गुरु को उन्होंने किसको नहीं सिखाया. मतलब इतने शागिर्द उनके आज नाच रहे हैं, उन्होंने इंस्टीट्यूट खोल रखा है एवरीवेयर, बट कहता है ना कि उन्होंने, क्योंकि शी नेवर गॉट मैरिड. Okay. तो मुझे शायद लगता है कि भगवान ने उनकी जो करनी थी, उनका जो दिल था, उन्होंने आर्टिस्टों के लिए क्या नहीं किया. वो घर जो था वो एक होटल से भी बड़ा था, कि जो आर्टिस्ट उनको जानते नहीं थे वो आके रुकते थे वहां और रह जाते थे. परफॉर्मेंस, शी यूज्ड टू हेल्प लॉट ऑफ डांसर्स टू डू मेकअप. तो शी हैज, मतलब आई डोंट थिंक, क्योंकि मेरी गुरु है या मेरी माँ है, वो मैं तारीफ नहीं करना चाहता, पर उन जैसा तो इस पृथ्वी पे कोई हो ही नहीं सकता. और कथक के प्रति जो सेवा उन्होंने की, वो इट वाज जस्ट इनक्रेडिबल. तो ये करते करते मैं अपना डांस में भी नाम हो रहा था, सोलो भी हो रहे थे, और उन्होंने मुझे एक मैनली डांस के साथ में ट्रेन किया कि Yes. क्या होता है. तो आई थिंक आई वांट टू मेंशन दिस वेरी लाउडली कि मैं एक ही डांसर ऐसा हूं आई थिंक अभी तक जो मेकअप नहीं करता स्टेज पर. जरूरत नहीं है. मतलब इवन वो जो हम आंख बनाते हैं या कुछ करते हैं, मुझे लगता है कि अगर आपको एक्सप्रेशन करना है तो उसके लिए आपको काजल लगाने की जरूरत नहीं है. आपका एक तिलक भी है तो आपका एक एटीट्यूड है. भाव तो यहाँ से आता है ना, दिल से आता है, वो दिखना चाहिए. अगर आप राधा कर रही हैं या कुछ एक्सप्रेशन कर रही हैं, तो इट हैज टू कम. इट विल नॉट कम बिकॉज यू पुट आईलाइनर और अ काजल. Yes. मैं डे 1 से उस चीज से दूर रहा. सेकेंडली, एक मेल डांसर्स का, मैं बहुत लाउडली कह रहा हूं, ये बड़ा इंप्रेशन जो गेनेस का था, बहुत बड़ा एक स्ट्रेस था. जो देखे जो बोले क्या काजल लगा के आ गए, और क्या ये और क्या वो और फलाना ढमका. तो पीपल यूज्ड टू नॉट रियली appreciate male dancers. I decided not to marry a dancer because I used to think on the same lines. You being a dancer by yourself, see? तो मुझे वो हम लोगों लड़कियों से भी ज्यादा वो लगते थे, जरा हट जाना. मैंने कहा अबे हट, that kind of a thing. मैं दिल्ली की पली बड़ी हूँ, तो मेरे को सब कुछ बोलना आता है, सब गाली गलौच आते हैं मेरे को. हाँ, of course. जो वक्त पे चाहिए सब कुछ आता है, सबको आता है. सबको आता है. So मैं उल्टा, अबे हट, कहाँ जा रहा है? That kind of personality, I don't know why people can't keep it. There are very few who have been able to keep that, manly personality. तो मेरे लिए ये प्रोफेशन चुनना भी एक चैलेंज था. हर मेल डांसर तो वैसा है नहीं, बेचारे मेहनत कर रहे हैं, पर सर्वाइवल टू अर्न थ्रू डांस वाज वेरी चैलेंजिंग. सी, लड़कियों के लिए मुश्किल नहीं थी, लड़कों के लिए इस प्रोफेशन में आना बहुत टफ था. सेकेंडली, बीइंग इन बॉम्बे, जहां पे सिर्फ दिग्गज थे, कोई इंस्टीट्यूट नहीं, कोई कथक केंद्र नहीं, कोई फलाना नहीं, कोई ढमका नहीं, और आप सडनली आप डांस को, क्योंकि यहाँ की लाइफस्टाइल, अच्छा हमने जो लाइफस्टाइल जी वो बड़ी एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल है. तो मैं बड़ा कंफ्यूज था कि मुझे करना क्या है.
पर मैं मेरे गुरु की डोर पकड़ के रियाज कर रहा था, नाच रहा था उनके साथ। जब भी उनका सोलो होता था उसमें 20 मिनट भाजी मार लेता था कि मुझे भी नाचना है, तो शी यूज्ड टू प्रमोट मी। Right. एक तरफ पैरेलल एक लाइफ चल रही थी बॉलीवुड की एज एन एक्टर, व्हिच वाज फेचिंग मी सुपर मनी दैट टाइम। Right. तो डांस से नहीं मिल रहे थे और लग्जरी मिल रही थी, आपको ट्रीटमेंट वैसा मिल रहा था। एक ही दौर निकलते निकलते फिर मैंने बहुत कुछ और भी, थोड़ा मैच्योरिटी आती है तब आदमी अपने आप से बात करता है, अपने आप से पूछता है। पर एक चीज तो डे वन से ठानी हुई थी कि मैं अपनी गुरु की पहचान को हटने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। Beautiful. पर Thought. मैं बॉलीवुड से क्या ले सकता हूँ। तो फिर मेरी जर्नी ट्रैवलिंग में जब शुरू हुई तो अमेरिका जाना हुआ, ये हुआ, और वहां के म्यूजिकल्स देखे। तो व्हाट आई टेल पीपल दैट बिकॉज you have not got an opportunity to be in Bollywood, so you criticize Bollywood. वो होता है ना, the grapes are sour. Correct. Hmm. So करना सबको है। आज रियलिटी शो मैंने कम से कम 4 से 5 रियलिटी शो जज किए हैं एज ए सेलिब्रिटी। आई फील वेरी वेल। सो मुझे मेरे एक किसी ने बड़ा अच्छा कहा कि जब मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि यू नो आई विल लीड एज अ पहचान जो है मेरी वो संदीप महावीर एज अ कथक डांसर है। तो आई डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई डू कोरियोग्राफी, आई डायरेक्ट प्रोजेक्ट्स। Right. भरी भरी जिस एल्बम का आप जिक्र कर रही हैं, द डीओपी Yeah. इज अ संजय लीला बंसाली डीओपी, मिस्टर सुदीप चैटर्जी। Yes. It gives और वो that. म्यूजिक वीडियो करने के लिए आए तो ये मेरे रिलेशन है और मेरी पहचान है कि उनको पता है कि ये काम करेगा। तो आप वो वीडियो देखें, इट्स लाइक अ बंसाली सॉन्ग। Absolutely, I had the same feeling because you know I'm a big Bansali fan. So, Me too. तो जब मैंने वो वीडियो देखा था, so I rewinded and I rewinded, I rewatched it. I sent it to my girls. Watch this. This is really cool. And you know, I love appreciating good work. वो कोई किसी का भी काम हो, मुझे अच्छा लगता है काम देख के. It inspires. So when I saw that video, I was like, this is something, you know, like a masterpiece. और ऐसे मैंने नहीं देखा, and this is what I wish to do someday. You never know. You know, you just have to keep You your will. thanks. So you just have to keep your this thing alive. But मुझे ये भी पूछना है आपसे कि आपने संदीप जी अभिमन्यु किया, Kingdom of Dreams. मैं आपकी वो बॉलीवुड वाली बात को क्लियर करते हैं, देन विल गो हाँ, टू right, अभिमन्यु। right. The तो balance of मैं- Bollywood and classical. हाँ, हाँ, तो पर मैं आपको बता दूं, हमारे साथ यहाँ पे रीमा जॉयमन है, इनी सिंह, हाय इनी सिंह is here, Vidha Lal is also here, Rituparna Mukherjee is also here, and we have a lot of people on this show. And सब डांसरों को मेरा प्यार, मोहब्बत, लव, सब बड़ों को मेरा प्रणाम, और सब फैन स्टूडेंट्स को आशीर्वाद। यू नो इट्स अ प्लेटफॉर्म दैट बहुत सारी बातें हम परफॉर्मेंसेस में नहीं कर पाते और इतनी मुलाकातें नहीं। right, yeah. तो इस माध्यम से जो जानना है या पूछना है आप पूछ भी सकते हैं। आप प्लीज आपके सवाल पूछें। Yeah, you can अगर put up उसका जवाब मेरे questions. पास है तो मैं जरूर दूंगा, Right. नहीं है तो फिर हम फिर मिलेंगे। हम फिर से मिलेंगे। तो कमिंग टू बॉलीवुड, तो क्या Yeah. हुआ कि मुझे कहा मेरे गुरु ने कि अरे तू इतना अच्छा नाचता है और ये है, या तुमने डिसाइड कर लिया यहाँ ना, तो तू तेरे फील्ड का तो शाहरुख खान ही है। तो मैंने ये कहा कि व्हाई डोंट आई चेंज सम थिंग्स व्हिच वर आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी। हो सकता है मैं गलत हूँ, ये मेरे पर्सनल फीलिंग्स हैं। लोग आज भी कुछ सोचें या अपने माध्यम से करें, दैट्स देयर लुक आउट। एज अ परफॉर्मर ऐसा नहीं कि मैं आज ही मैंने ये सारे कुछ क्रिएट किए। मैंने भी एक जर्नी बहुत बड़ी की है परफॉर्मर की। गोबर के स्टेज पे भी नाचा हूँ, गांव में भी नाचा हूँ, और मैंने देखा है कि क्या दिक्कतें आती। म्यूजिशियंस मेरे घर में होने के बावजूद मुझे नहीं मिलते थे। तो वो फ्रीडम ऑफ डांसिंग, आई हैड अ ग्रेट तबला प्लेयर हु वाज माय ब्रदर, आई हैड अ ग्रेट सिंगर माय ब्रदर, बट वो अपने कामों में भी बिजी रहते थे क्योंकि उन्होंने मेरे अलावा कभी किसी को अकम्पनी किया, बिकॉज़ दे वर सोलोइस्ट बाय देमसेल्फ। Right. तो आपकी ट्रेनिंग में इतना जोर होना चाहिए कि आप जब सोलो नाचें, पारंपरिक सोलो, तो वो मैंने बहुत प्रूफ करके नाचे हैं। द बेस्ट ऑफ द तबला प्लेयर्स ऑन द प्लैनेट हैज परफॉर्म्ड, एंड मेरे क्लास के तबला प्लेयर्स के साथ भी नाचा है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। बिल्कुल। आप अगर बंदिश में हैं कि नहीं मैं 10 घंटे रिहर्सल करूं या फलाने घंटे रिहर्सल करूं तब नाचूं, आई बिलीव मेरा एक प्रॉब्लम भी है, यू नो, आई शेयर इट। आई लाइक द सेट ऑफ म्यूजिशियंस टू चेंज, Okay. बिकॉज Lovely.
my eye vision, I can't see everybody for a longer time. I can't. हाँ, मतलब परफॉर्मेंस में सेम चीजें क्या है, फिर वो उनका इंटरेस्ट जो है ना, वो परफॉर्मेंस में खत्म हो जाता है. फिर उनको पता है अच्छा यही आएगा, अच्छा यही बजेगा. नहीं, आप भी बहुत अलर्ट रहते हैं. आप भी बहुत अलर्ट रहते हैं ना. जैसे आप कोई नए हाईवे पे गाड़ी ले जाते हैं तो आपको पता होता है कि भाई संभल के चलाना. आई एम नॉट यूज्ड टू दिस रोड. Yeah. So it's the same way when you have a new set of musicians who have fire, who are ready to eat you up on stage, and then that challenge that your riyaz or your क्योंकि आप अपने आप को भी तो करेक्ट करेंगे ना. आपकी गलती तो आपको स्टेज पे देखनी है. बिल्कुल. अपने आप को ठीक करते रहना है. लोगों को तो छोड़िए, इस जन्म में अगर इंसान अपने आप को ठीक कर ले तो बहुत है. तो बॉलीवुड में मैंने क्या सीखा और मैंने क्यों पकड़ के रखा. I knew one day that I want to change few things in the Kathak field on stage. Right. तो मैंने प्रोडक्शन कैसे होता है ये सीखा. Right. लाइटिंग के क्या माध्यम ये सीखा. Right. एक ऑन टीम. Why do you need a team? आज शाहरुख खान आता है तो उसके बाद टीम क्यों होती है भाई. उसकी लाइट इतना करेक्ट कैसे होती है, ये हम स्टेज पे क्यों नहीं अचीव कर. उसके बाद साथ साथ में I was traveling and I was watching Broadway shows in America. मेरे सारे पैसे वहीं खर्च हो जाते थे कि मुझे ब्रॉडवे देखना होता है. फिर मैं शो के बाहर निकल के सोचता था कि हमारी कला, हमारे डांस में कहीं तो कमी नहीं है. अथाह सागर है, पीढ़ियों से चला आ रहा है. पर ऐसा क्या है, one word, you know, trust me, one word of whenever I used to do a solo concert, oh, it's a very niche audience. कौन बाय करेगा टिकट, कौन आएगा, और यही चला आ रहा है. देख भी रहे हैं भाई, ऑर्गेनाइजर तभी हमारे सर पे एक्चुअली हमको बाइट कर लेते कि भाई या तो आप प्रूव करो कि आपके नाम पे हाउसफुल हो जाएगा तो आप ऑर्गेनाइजर से पैसे भी मांगो. वैसे भाई कलाकार में भी तो ताकत होनी चाहिए. आज शाहरुख खान की अगर 100 करोड़ की फिल्म बनती है तो वो 500 करोड़ लाता भी तो है. Exactly. You can't complain. It is yourself that you need to correct. So I was in that vision कि ऐसा क्या लैकिंग है कथक में या हमारे स्टेज पे जो हम आम जनता तक नहीं पहुंच पा रहे. See, my biggest focus, I don't want to perform for the people who know Kathak. Right. Like for example, महाराज जी ने इस दौर में कथक को आम जनता तक पहुंचा दिया था. जो आप चाहे उनके पसंद करें नहीं करें उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बट सच्चाई जो है वो आपको बोलनी ही पड़ेगी अगर आप सच्चे हैं. Right. एक ले पर्सन से कथक कैसे कनेक्ट होगा वो उन्होंने शुरू कर दिया. हमारे बुजुर्गों ने उस चीज की कोशिशें की और परफॉर्मेंस हुई तो वाह हुई. दुर्गालाल जी, उन्होंने एक मैन कैसे परफॉर्म करे, डांस कैसे, उन्होंने एक वो ट्रेंड शुरू किया. गोपी कृष्ण जी, मैं बोलता हूँ स्टारडम, उन्होंने. अब आप मुझे बताइए कि आप कहते हैं बॉलीवुड इन्फ्लुएंस, सो आई एम कमिंग टू दैट बॉलीवुड थिंग. राइट. गोपी जी तो बॉलीवुड से इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, इतने ज्यादा कनेक्टेड थे, तो क्या उन्होंने कभी सोलो नहीं नाचा स्टेज पे? उन्होंने जो सोलो नाचा वो आज की तारीख में कोई जनरेशन नहीं नाच सकता. Exactly. He was the first person in the history of Kathak to dance a 9-hour solo. और जहां तक मेरी नॉलेज है, हाँ, incredible. 9 घंटे का सोलो नाचा था उन्होंने, और उसमें मेरे ताऊजी मदन प्रकाश जी ने अकम्पनी किया था, और संपूर्ण रामायण शायद उन्होंने की थी, और शायद 9 ताले नाची थी. वाओ. तो आप ये सोचिए कि अगर 5 तोड़े भी या 10 तोड़े भी नाचे होंगे हर ताल में तो 90 तोड़े तो यही हो गए. ठीक है, वो एक ट्रेंड सेट किया उन्होंने. बॉलीवुड में अगर झनक झनक पायल बाजे फिल्म नहीं बनी होती तो आम जनता को आज भी कथक क्या है पता नहीं होता. पता नहीं चलता. एग्जैक्टली. एक्चुअली या थैंक्स टू वी शांताराम जी जिन्होंने सोचा, और उनको डांसर मिला गोपी कृष्ण जी जैसा, राइट, जिन्होंने वाव फैक्टर कर दिया. आज वही बंबई नगरी की बात बता रहा हूँ कि ये सारा कुछ स्टार लोग सब कुछ छोड़ के आए तो मुंबई में. व्हाई बॉम्बे इज ग्रेटर देन एवरीथिंग. एवरीबॉडी वांटेड टू कम. अगर उनको सिर्फ डांस सिखाना था तो अपने स्टेशंस में थे ही हर जगह. आज महाराज जी की, महाराज जी डे 1 से ही थे, पर एक आम जनता जो सिर्फ बॉलीवुड देखती है उनको भी ये समझा दिया कि बेटा कथक क्या है देख लो. आप चाहे माधुरी के माध्यम से देख लो, चाहे संजय लीला बंसाली के माध्यम से. इसी बात में मैं एक चीज बताऊंगी आपको संदीप जी. मेरी किसी से बहुत ज्यादा तू मैं हो गई थी.
नाम नहीं लेंगे, बाद में कॉल पे बताऊंगी किससे हुई थी हाँ, मेरी। ठीक है, दोनों मतलब दिल्ली फर्टर्निटी को पता है कि मेरी तू मैं किससे हुई थी। और उसने बहुत बुरी तरह से बोला था कि महाराज जी को फिल्मी डांस नहीं करना चाहिए था। पहले मैंने ये बोला कि पहले तो आप देख लो, माधुरी दीक्षित के जब वो शो पे आए थे तो मैंने हाँ, कहा वो झूलत राधे नाचे थे, फिल्मी कुछ भी नहीं नाचे थे महाराज जी। सेकेंडली, हाँ, उस माध्यम से एक शिष्य अपने गुरु को किस तरह दक्षिणा देता है, ये उस शिष्य पे डिपेंड करता है और उस गुरु पे डिपेंड करता है कि वो एक्सेप्ट कैसे करते हैं। और मुझे याद है कि मेरा जो इवन एक ड्राइवर आया, मेरा ड्राइवर जो है उसने मुझे आके बोला कि मैडम आप वही डांस करते हो जो कल माधुरी दीक्षित और उनके गुरुजी आए थे। मैंने कहा हाँ, मैं वही डांस करती हूँ। एग्जैक्टली। तो जो ड्राइवर मेरे साथ हर रोज है उसको भी वही रियलाइज हुआ जब उसने माधुरी दीक्षित को देखा और महाराज जी को जिस तरह से वो नमन कर रही थी, जिस तरीके से इज्जत दे रही थी एक नेशनल टीवी पे। मैं ये कह रहा हूँ कि महाराज जी में वो ताकत थी जी कि जो सेलिब्रिटी वर्ल्ड की है, हाँ, माधुरी दीक्षित, ठीक है, राइट, वो जहाँ खड़े हो जाए वहां पे भीड़ लग जाएगी, बिल्कुल ठीक है। वो तो पहले आके ऐसे साष्टांग झुकती है महाराज जी के, और महाराज जी ने घुंघरू पहनाकर हर बार उसे नचा दिया। तो बिल्कुल कथक भी बड़ा हुआ ना, महाराज जी हाँ, ने कथक ही तो नचाया है उसे। बिल्कुल 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 गोपी जी ने जनक जनक पायल में जब परफॉर्म किया तो संध्या जी को उन्होंने कथक ही कराया। बिल्कुल मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले की डांसर्स, राइट, वैजंती माला जी, मधुबाला जी, आशा पारिक जी, XYZ, ऑल द डांसर्स। और मैंने कहा कि माधुरी दीक्षित पर आके वो एरा खत्म हुआ। एक मैंने वन ऑफ द इंटरव्यू में कहा था, दे ऑल वर क्लासिकल ट्रेन्ड डांसर्स। डांसर्स एब्सोल्युटली। आज की डेट में हम जिन्हें लेजेंड कहते हैं, गुरु, शागिर्द लोगों को समझा रहा हूँ कि अगर स्टूडेंट को समझ में आए, अपना दायरा बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपने नहीं वो चीजों की कोशिश की तो आपको, आप बोलिए मत, एटलीस्ट आप अपने तरीके से जिए, आपकी लाइफ है, आप अपना जो करना चाहें कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, लच्छू महाराज जी वॉज एसोसिएटेड बॉलीवुड, गोपी जी वॉज एसोसिएटेड बॉलीवुड, रोशन कुमारी जी, जयपुर का राना, वॉज एसोसिएटेड विद बॉलीवुड। अब क्या आप ये कहेंगे कि क्लासिकल डांसर्स नहीं? और फाइनली बिरजू महाराज जी, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे डांसर्स हैं क्लासिकल के जिन्होंने बॉलीवुड में कोरियोग्राफीज की हैं या अपने अंग से उनको नचाया। आज दौर हिप हॉप का आ गया, पर पहले लोग क्लासिकल के ही कोरियोग्राफर्स थे, क्लासिकल के ही परफॉर्मर्स थे और वही मास्टर्स थे। क्यों आप बोल रहे सिर्फ हिप हॉप? इवन देवदास आप ले लो, काहे क्लासिकल है। आज संजय लीला बंसाली हैज अ ट्रेंड ऑफ ब्रिंगिंग क्लासिकल टू दैट। क्लासिकल, हाँ, मोहे तो रंग पहली दो बात, लाल। तो बॉलीवुड से ईर्ष्या छोड़ दो। बॉलीवुड वो माध्यम है जो आपको रातों रात फलक पे ले जाता है। बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। मुझे लगता है कि आपको ईर्ष्या इसलिए क्योंकि आप सच्चाई को फेस नहीं करना चाहते हो। करेक्ट। टू बी वेरी और या आप ऑनेस्ट, वहां पे हो नहीं, इन या आप शॉर्ट, ये वहां कोई पे बात हो नहीं। तो ये भी मुझे भी वक्त लगा क्योंकि एक आप ना एक एनवायरनमेंट में बड़े होते हो संदीप जी। जी। मैं कथक केंद्र में बड़ी हुई हूँ, मैं दिल्ली एक फर्टर्निटी में बड़ी हुई हूँ। The society which I lived in was also, trains your mind. कि Bollywood no. But today, I think after 35 or 40, I realized that dance is global. Why am I restricting myself? ऑब्वियसली, बिल्कुल डांस इज ग्लोबल। मुझे डांस से प्यार है, कथक मेरा मीडियम है, करेक्ट। मुझे डांस से प्यार है। डांस इज अ वेरी यूनिवर्सल एंड अ ग्लोबल लैंग्वेज। तो मैं अपने आप को सिर्फ कथक पे क्यों रिस्ट्रिक्ट कर रही हूँ? कथक के द्वारा मैं बात करूँ ना। The same way, that's why I think Bollywood has gone so much global. करेक्ट। The height जो बॉलीवुड को मिला है क्योंकि उसने हर चीज को अपने में समा लिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। And आज टीवी kudos का to माध्यम you. है। हाँ, Kudos to you, the way you have balanced both the Bollywood and classical and kept it rocking, जी। मैं कथक, मेरा लक्ष्य ये है, मैं अपने माध्यम में शायद छोटा हूं कहीं, पर मैं मेरे एक रास्ते पे चल रहा हूं कि कथक पहली बात तो निश ऑडियंस नहीं है, ये एक ऐसा आर्ट फॉर्म है
जो हर किसी के साथ फिट हो जाता है। हम बॉलीवुड को क्रिटिसाइज करते हैं, कौन सा कथक डांसर है मुझे बताइए जो स्टैब्लिश है, ट्रैवल है और आप ग्रो अप कर रहे हैं फ्लेमिंगो के साथ, टैप डांसर के साथ, आपने कॉम्बिनेशन तो कर ही लिया ना। सिर्फ Right. बॉलीवुड से ऐसा है क्योंकि आप एक्सेस नहीं कर सकते। Exactly. तो कहने का मतलब ये है कि कथक एक आर्ट ऐसा है जो हर कहीं जा सकता है। और हम मेरी पीढ़ी या मेरे बाद वाली पीढ़ी जो अभी देख रही है, डोंट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ Yourself, एज yes. फार एज यू आर नॉट हैमरिंग द ट्रेडिशन। मैं जब नाचता हूँ, मैं अंगरखाई पहनता हूँ, मैं उठानी नाचता हूँ, मैं परनी नाचता हूँ, पर मेरा पैकेजिंग अलग होता है। Right. लाइटिंग सेंस, दैट्स व्हाई कमिंग टू बॉलीवुड, लाइटिंग स्टेज पे कैसे होती है ये मुझे बॉलीवुड ने सिखाया, कैमरा कैसे होता है ये मुझे बॉलीवुड ने सिखाया, मुझे मार्क पे कैसे आना, डांसरों को मार्क पे आना ही लोगों को पता नहीं कि मार्क पे, अच्छा हम मार्क पे आ रहे हैं। सो हाउ टू क्रिएट ऑडियंस। आज किसी के लिए क्यों पैसा देके आएंगे भाई आपके पास, आपके अंदर ऐसे आपके पास क्या जादू है कि आप 3 घंटे बांध के रखें। तो I started when I started doing my solos, I started incorporating drums. रंजीत बारोट, तौफीक कुरैशी जी, रूप कुमार राठौर, मैंने कॉम्बिनेशन किए। I bought a team. I'm the only dancer I think who has bought celebrity performance, not one time, हजारों शो ऐसे Every किए। time. Yeah, every time. क्योंकि आप क्या डायमेंशन दिखा रहे हो ऑडियंस को। हम 2020 में हैं, आज हम बड़े बड़े गुरु या शागिर्द करें, कहाँ टाइम मिलता है, 20 मिनट ही मिलता है, ठाट दिखाने से अच्छा हम जल्दी कर रहे हैं। अरे आप रिवर्स करो ना, अब प्रोडक्शन ऐसा करो कि आपके नाम का ही शो हो। और मुझे लगता है आपको अगर 20 मिनट मिल रहा है तो आप उस जगह पे नाच क्यों रहे हो? एग्जैक्टली, मना कर दो। आप वहां पे क्यों हो? You know, हाँ, if it is that you don't want to do, अगर आपको ये शिकायत है कि आपको 20 मिनट मिल रहा है, उसमें आप क्या नाचोगे, तो आप वो 20 मिनट के लिए हाँ भी क्यों कर रहे हो? प्रश्न में 2 चीजें, या तो मुझे लोग बुलाते नहीं कि 20 मिनट वाले में संदीप महावीर आएगा नहीं। हाँ. दूसरी बात, अगर आएगा तो इसके साथ कम से कम 50 से 60 लोग आते हैं। Right. He has a team. I don't travel. I maintain to be a Shah Rukh Khan of Kathak dance because हम अगर आदत नहीं डालेंगे तो लोग तो हमें राइड के लिए ले ही चुके हैं, हमारे बुजुर्गों को ले चुके हैं। मैं तो ये यंग जनरेशन को कहता हूँ कि go like a star, ask for it. If you Yes. have a capacity in your art, people will give you. हम ही कॉम्प्रोमाइज, अच्छा ठीक है 3 स्टार में रहेंगे, नहीं मैं तो 2 स्टार में ठीक हूँ। अच्छा आप ट्रेन में आएंगे, फ्लाइट में आएंगे, नहीं मैं ट्रेन में आ जाऊंगा, पर प्रोग्राम दे दीजिए। अरे क्यों? Right. You're very correct. You know, Sandeep ji, we had to become friends. ये जो आप डायलॉग कह रहे हैं ना, शाहरुख खान, I say that dialogue कि मुझे शाहरुख खान बनना है कथक का, सिर्फ नाच से नहीं, Absolutely. दिमाग से और बिजनेस से। मुझे हर बार पूछा जाता है कि आर्टिस्ट को कमर्शियल होना चाहिए, ऐसे क्यों नहीं होना चाहिए? Why not? घर कैसे चलेगा? घर का exactly the thing. Who's going to pay my bills? Nobody else. So you need to have money. You can't have a hungry artist. And you should know your worth. आज ही मेरे को किसी ने फोन किया, एक लड़की ने, कि दीदी मेरे पास यूएस से एक ऑनलाइन का आ रहा है, कितने पैसे लूं? तो मैंने उसको एक एक्स अमाउंट बताया। दीदी ज्यादा नहीं हो जाएगा इस टाइम पे? मैंने कहा डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर वर्थ। बस यही तो प्रॉब्लम है, ज्यादा नहीं हो जाएगा। यस, मैंने कहा ज्यादा हो जाएगा तो छोड़ दो, मत करो, बट डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर वर्थ। मैंने एक शो किया था कमानी में, मेरे नाम से शो था नूपुर करके। अच्छा। तो बैक टू बैक दिल्ली और कमानी में थे। 4 दिन कमानी ऑडिटोरियम सिर्फ मेरे टेक्निकल के लिए बुक था। एंड देयर वर 79 people who traveled from Bombay. Right. My organizer was from Bangalore. She's a very dear friend. जब हमने उनको पैकेज करके दिया शो, तो समझ में आता है कि यार कथक, क्योंकि देखिए ऑडियंस की जहां नजर बट गई, तब आपका शो खत्म हो गया। out of mind, out of sight, out of mind. कभी आपका डांस पकड़ेगा, कभी आपका रिदम पकड़ेगा, कभी आपके ऑर्केस्ट्रेशन पकड़ेंगे, कभी आपकी लाइट्स वाव फैक्टर क्रिएट होंगे। ये पैकेजिंग कोई डांसर क्यों नहीं करता? अगर आपको बनना है, छोड़ दीजिए ना, आप करिए। सो फॉर मी, सो पीपल आर स्कैर्ड, सो नॉर्मल पीपल डोंट कॉल मी बिकॉज आई विल गिव अप, माय ऑफिस विल सेंड अ स्पेसिफिकेशन कि इतना लाइट होगा, इतना राइडर होगा, इतने लोग आएंगे, इनकी तो मेकअप टीम भी अलग आती है। और ये लोगों ने देखा है, मैं जो कह रहा हूँ
ये कोई हम्म। बनानी बात नहीं, ये लास्ट 15 साल से गुरु महाराज के आशीर्वाद से 20 साल से ऐसे ही है। मैं Right. संस्कृति महोत्सव के लिए जब गया, Hmm. गवर्नमेंट ऑफ कल्चर मिनिस्ट्री वाज शॉक्ड बिकॉज देयर वर 3 buses and there were 120 dancers with me who performed. Right. तो अगर आप करेंगे, आप कोशिश करेंगे, हम क्यों छोटा करें भाई? क्यों बॉलीवुड Exactly. में पैसा मांगे? क्यों बड़े-बड़े दो आज माइकल जैक्सन क्या हमारे कला से बड़ा होगा? आई वांट टू बी अ माइकल जैक्सन, मेरे को भी हमारी भी टीम जानी चाहिए चार्टर प्लेन में, क्यों नहीं जाएगी? पर आप सोचते सपने ही नहीं। देखो तो ऐसे देखो, सपने देखो तो ऐसे देखो संदीप जी। और मैंने मैं achieve किसी भी को किए। मैं किसी को ना झोली नहीं फैलाती हूँ, क्योंकि सबसे पहले जब मैं यंग थी तब लोग ऑफिसर्स कहते थे लेट्स गो फॉर अ कॉफी डेट। आई सेड, सॉरी। जो मैं बोलती थी फिश ऑफ। सो एंड देन अभी जो है मुझे लगता है कि मेरी समझ के साथ लोग मैच ही नहीं कर पाते, सो आई इन्वेस्ट ऑन माई ओन। इस बार जब मैंने अपना शो किया, आई हैव अ फेस्टिवल कॉल्ड स्पिरिट ऑफ डांस व्हिच वाज द 10th ईयर, एंड आई हैड LED lights and LED walls and everything created. वाओ। And मुझे मैं नाम लूंगी, मैं बहुत बड़ी उनकी फैन हूँ, एंड नहीं नाम नहीं लूंगी क्योंकि फिर नजर लग जाती है। फिर तो वो एयर उन्होंने कंडीशन कहा हो कि जाएगी। हाँ, उन्होंने मुझे कहा तुम छुपी क्यों हो? मैंने कहा मुझे ना दीदी बाहर निकल के पॉलिटिक्स, डर्टी पॉलिटिक्स में नहीं घुसना है। मुझे इसका पत्ता काटना, उसका पत्ता साफ करो, मुझे नहीं करना है। मैं अपनी जगह पे खुश हूँ, एक करती हूँ, कहते तुम एक करती हो पर धमाका करती हो, that's Correct. enough for me. Correct. Kamani is houseful, 6:30 show. Kamani is houseful at 6 o'clock. By 6:15 you will not get a seat. By 6:30 you have to go to the balcony and it starts sharp. मेरा है एक भी audience बैठा होगा, show शुरू करो. I will not compromise on our ethics. Why can't we classical dancers maintain the ethics and then we find faults with others? कि मेरा दूसरे लोगों को complain करते हैं. सबसे बड़ा जो जंप फिर मैंने जो एक जिद थी कि आई वांट टू डू अ स्क्रिप्ट। क्या होता है हमारे डांस में तो पद्धति है, पर उसके साथ व्हेन यू आर परफॉर्मर देयर आर लॉट ऑफ पद्धति ऑफ स्टेज डिसिप्लिन, Yes. ऑफ म्यूजिशियंस नॉट लुकिंग लेफ्ट। मुझे बहुत बॉदर करता है। मुझे कोई स्टेज पे अगर बात करे व्हाइल परफॉर्मिंग, तो ये डिसिप्लिन सदियों से चला आ रहा है, तो सबको आदत वैसी है। So seeing all the productions in America, I decided one day I will make a production और मैं कथक को उस स्तर पे ले जाऊंगा जहां पर लोग कहेंगे कि मैं कथक शो करके नहीं बेचूंगा, मैं तो शो लोगों को उस शो के जरिए से कथक दिखा दूंगा और लास्ट में निकलेंगे जब वो कहेंगे कि अरे यार ऐसा भी कथक होता है, ऐसा भी प्रोडक्शन होता है। Right. और वो पार करने में मुझे 12-15 साल लग गए क्योंकि वो छोटा एफर्ट नहीं था। And so finally I created Abhimanyu the fastest. Yeah, the Abhimanyu. And we did 180 shows and वो कथक डांसर की एक जयपुर घराने के लड़के की स्टोरी है जिसमें सारे गुरुओं का नाम है, सारे प्रोडक्शन जो है, इट्स अ स्टोरी। अब मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि पंडित रविशंकर जी वाज ऑलवेज पंडित रविशंकर जी, ऑलवेज। उन्होंने सारे कलाकारों को विदेश का रास्ता बताया, विदेश में क्या होता है। और Right. जाने के बाद में जिन्होंने ऑफ कोर्स उनकी संगत की या साथ में रहे, सबको पता चला कि अच्छा ऐसा भी होता है। बट ही वाज अ कैप्टन, ही Yeah, वाज leading it. Yeah, he was the man of the take off. जो Yeah. पहली फ्लाइट उड़ी थी वो पंडित रविशंकर जी थे। तो वहां जाने के बाद आप सोचिए, जिसकी दुनिया दीवानी है, बीटल्स, उन्होंने उनको शागिर्द बना लिया, शागिर्द बना लिया। तो दुनिया फिर भागने लगी कि अरे ये कौन है भाई जिसके हम दीवाने, वो उनके पैर छू रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि जब तक आप लार्जर देन लाइफ सोचोगे नहीं, सपने नहीं देखोगे। So when I created this production Abhimanyu, I wish you would have seen it in Delhi. अब पता है कमाल क्या है? हाँ, दुनिया के सब बड़े आर्टिस्ट आए देखने के लिए, हाँ, कथक के लोग नहीं आए। कथक फिटर्निटी का कोई नहीं आया क्योंकि ओ माय गॉड क्या पापड़ बेल रहे होंगे, क्या खराब कर रहे हैं। तो इट इज वेरी सैड। अरे बाबा, जिसके भाग्य में जो लिखा है, जिसको जो करना है वो कर रहे हैं। आप कितना, मैं तो छोटे से बच्चों को जाके तारीफ करता हूँ, शो देखने चले जाता हूँ, इस जनरेशन को जाके देखता हूँ। आप मेरा तो छीन नहीं सकते ना, मैं आपका छीन सकता हूँ। I swear यार, संदीप जी पहले क्यों नहीं मिले थे आप?
मैं फिर फुल फ्लर्टिंग नहीं कर रही हूँ, इस टाइम मैं फ्लर्ट नहीं कर रही हूँ, इस टाइम मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ। पहले क्यों नहीं मिले थे? क्योंकि आपकी सोच और मेरी सोच बहुत सिमिलर है। क्योंकि यही बात मैं कहती हूँ, क्योंकि मैं बच्चों के आई एम इंस्पायर्ड बाय द यंग जनरेशन, दे आर वेरी स्मार्ट एंड दे आर वेरी गुड। ऑफ कोर्स दे आर, और और उनको यहाँ पे यंग जनरेशन को बोलने नहीं दिया जाता है। वो उनको दबा के रखते हैं, क्योंकि वो क्या नहीं, पर क्या है, देखिए, आप अगर कहते हैं ना कि थप्पड़ खाओगे तो वो गाल थप्पड़ खाते ही रहेगा। ना मैं कहती हूँ, हम मैं गांधीगिरी में बिलीव नहीं करती। आई नो दिस इज गोइंग टू गो ऑन द यूट्यूब, बट दिस इज न्यू जनरेशन। मैं दूसरा गाल नहीं दूंगी, मैं तमाच के और दूसरा मारूंगी, गूंज सुनाई देगी तुम्हें सारी उम्र। मार ये के तो बात, देखो। तो यंग जनरेशन जो इतना अच्छा नाच रहे, आई डोंट टेक नेम, बट आई नो, वी नो, वी नो। बट open your vision, don't criticize people, don't say हम लोगों को ही दिक्कत होगी। देखिए, हमने तो हमारी पार कर ली, हम सेलिब्रिटी हैं, हमारी गाड़ी तो चलती रहेगी, ये भी बता देता हूँ। एब्सोल्युटली हमने कितना बड़ा प्रोडक्शन किया है आज तक की डेट में, मुझे बताइए, सोलो एक शो नहीं है, इट्स अ टैगलाइन कि भैया मैं सोलो नाचा, अकेले, एकलव्य, ठीक है। किसी के पास कोई प्रोडक्शन लार्जर देन लाइफ की जो आपके नाम से चलता रहे। माय विजन वाज, आज संदीप महावीर, कल कोई और आएगा, बट लेट्स ब्रिंग, देयर शुड बी एन अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्क फॉर पीपल इन योर प्रोडक्शन। डांसरों को काम मिले। मेरे पास स्लम के डांसर्स जो हैं उनको भी मैंने इनकॉर्पोरेट किया हुआ, एंड दे आर माइंड ब्लोइंग डांसर्स। आज जो मेरे साथ परफॉर्म करते हैं, इट्स अ 250 पीपल परफॉर्मिंग एट वन प्लेटफॉर्म। राइट We need to get into that trend. We need to get into work for ourselves rather than thinking about other, उसने क्या कर दिया। अरे आपकी पहचान बनाओ। मैं जब मानूंगा जब आपके नाम पे टिकट बिकेगी। राइट जिस दिन किसी कलाकार के नाम पे, मैं यंगस्टर्स और सारे लोगों की बात कर रहा हूँ, if there is a ticket sold out on your name, that day you are a star. आज भी शो करें सोलो का तो 300 टिकट फ्री में बांटते हैं, फिर उसकी बेल्ट वाले नहीं आते, उसके गुरु वाले नहीं आते, फलाने क्यों नहीं आते भाई? राइट अच्छा की है ना, लॉबी है यहाँ पे, फुल ऑन लॉबी है संदीप जी। इस लॉबी को कहते हैं ना कि तोड़ना होटल से चाहिए, देना चाहिए अगर आपको आगे सरवाइव होना है तो। आज कोरोना ने कुछ सिखा दिया। आज आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आप फलाना कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं। अगर हम यही बेल्ट, मैंने मिनिस्ट्री में भी बहुत सारे मुद्दे उठा रखे हैं, बात हो रही है। आई एम अ पार्ट ऑफ वन ऑफ द प्रोजेक्ट व्हिच मोदी जी इज डूइंग, आई एम ऑन बोर्ड, इट्स कॉल्ड कल्चरल मैपिंग। तो आई एम वर्किंग ऑन इट सिंस 4 years, बट अनफॉर्चुनेटली बीच में रुक गया था। इट्स गोइंग टू स्टार्ट। सो आज मैंने इस माध्यम से जो इंटरव्यू किए, कम से कम 20 गांव के यहाँ पे आर्टिस्टों के यहाँ मैंने कुछ हेल्प पहुंचाई है, क्योंकि आर्टिस्ट इज अ फैमिली। मेरे आर्टिस्ट, चाहे वो लावनी डांसर हो, चाहे वो बार डांसर हो, चाहे वो होटल में लॉबी में जो बजा रहा है वो हो, अगर हम साथ में खड़े रह के उनके लिए कुछ नहीं कर सके, हम मियां मिठू, मेरा I'm coming today to Kamani and I'm doing this and I'm performing in Nehru Center and I'm performing this, would you like to come? अरे भाई ठीक है, अगर आप में कमा तो अपने आप लोग आ जाएंगे देखने के लिए, पर हम साथ में क्यों नहीं है? Exactly. Why? Because I feel there's a lot of insecurity in people, in artists especially. पर insecurity यहाँ पे मुझे नहीं दिख रही है संदीप जी। मैं आपको बता दूं कि विनोद केविन बच्चन, he's a ODC dancer, he's watching you. Fateh Ali Khan, he's a very famous sitarist. Fateh, hi, how are you doing? And Ankita Chakravarti और गौरी दिवाकर, मेरी प्यारी बिहारन गौरी दिवाकर, I really love this girl. And she says संदीप महावीर जी स्टार हैं। मैंने ना कहीं पे पढ़ रही थी संदीप महावीर भाई, मैंने कहा भाई मत बोलो यार, भाई मत बोलो। वेरी गुड। गौरी सिंह, संदीप महावीर जी स्टार हैं। और रीमा जर्मन कहती हैं कि एकदम सच्ची बात है। तुलिका सेज लवली, ये बात जो बिल्कुल सच है, आपका परफॉर्मेंस माइंड ब्लोइंग है। रुचि बलूनी सेज ट्रू। संदीप जी वेयर आर यू? कहाँ चले गए? आपके यहाँ पे नेट का प्रॉब्लम है क्या? जल्दी आ जाओ। जहाँ पे आपकी मैं तारीफ कर रही थी वहीं पे आप अरे जॉय, मुझे फोन पे देखना पड़ रहा ना, मुझे संदीप जी को बताना है कि उनके फैंस उनके बारे में क्या लिख रहे हैं। एंड
ब्लैंक हो गया आप, या आपका योर इमेज yeah, this is the problem of the net that we are having, because a lot of people are online, and I'm sure Sandeep ji will be back soon with us. And definitely जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि there's a lot of insecurity in the artist, तो मेरा ये मानना है कि जो आपके किस्मत में है, जो आपके भाग्य में है, वो आप ही को मिलेगा. सो वो और किसी को नहीं मिल सकता. सो इट इज नो यूज बीइंग इनसिक्योर. इट्स ओनली दैट यू नीड टू वर्क हार्ड. You need to work hard, and you need to keep on progressing, and keep on taking up the opportunities which are there. So I think I'll just give him a buzz also, because again this is the problem of the net. I feel that this has got stuck, so I will ask him to join again. And so hope he's back with us soon. But this is lovely talking. All of you audience, you can ask your questions. You can put up your questions and we will answer them. I will ask Sandeep ji to answer all your questions, and you can be there online with us if you want to be online with us. And जहाँ पे उनकी तारीफ हो रही थी वहीं पे वो उनका वो हो अटक गया. पर ऐसी कोई बात नहीं, हमारे पास टाइम का कोई बंधन नहीं है, और इसलिए हम कंटिन्यू करेंगे. हम आगे भी, तो आप कहीं मत जाइएगा, आप मेरे साथ ही रहेंगे. और इसी बात पर मैं कुछ गाना गा देती हूँ, अगर थोड़ी देर का हमारा विश्राम का टाइम है. आई थिंक ही विल जॉइन अस अगेन. और कौन सा गाना गाऊं? पुराना कुछ गाती हूँ. अजीब दास्ता है ये. कॉल आ गई. संदीप जी, वेयर आर यू? आप फिर से ज्वाइन कीजिए, आपके वहां से कुछ प्रॉब्लम हुई है. आई एम, हाँ आपके वहां से हुआ है. ज्वाइन अप, आप फिर से ज्वाइन कीजिए. राइट, आई जस्ट सेंड इट यू अगेन. इट्स आई एम ऑन द सेम मीटिंग. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. राइट. So जब तक संदीप जी आ रहे हैं, let me continue with my singing, or if you want me to sing something else, you can put on your request. And otherwise मेरा सबसे पसंदीदा गाना जो है वो यही है. अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम. अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, वो मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम. आ गए, आ गए. धुआं उठा चिराग से. तब तक मैं गा रही थी, जब तक मुझे था कि आप नहीं आ रहे हो, तो मैं ऑडियंस को कैसे एंटरटेन करूं. इस मामले में अभी पता चला कि बहुत सारे लोग आपके पेज पे देख नहीं पा रहे हैं. लॉट ऑफ पीपल एसएमएसिंग मी. नहीं, उन्होंने वही लिखा कि ये जो एक बार नेटवर्क का प्रॉब्लम हुआ, आप एकदम हट गए ना, सो वही. नहीं, और भी लोग जो ज्वाइन ही नहीं कर पाए. वेयर डू दे हैव टू गो? ऑन योर पेज? ऑन माय पेज और ऑन योर पेज, दोनों पेजेस पे है. नहीं आ रहा है. कुछ लोग बोल रहे हैं शायद नहीं आ रहा है. मैं वो देख रही हूँ, मेरे सामने है. ये देखो, ये देखो, हम दोनों यहाँ पे हैं फेसबुक पेज पे. अलकनंदा कथक, राइट? कथक, हाँ हाँ, हम दोनों, ये मेरा ही पेज है. ये देखो फेसबुक पेज है. बोलो लिंक पे जाए, लिंक पे जाए. अलकनंदा कथक जो मैंने सेंड किया ना. फिर से आप फिर से स्टॉप हो गए संदीप जी. आप फिर से स्टैचू. मुबारक तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, मुबारक तुम्हें कि तुम
ये समझ में नहीं आ रहा, आपके वहां से कुछ गड़बड़ हो रही है। मैं तो अभी भी लाइव पे हूँ, आपके वहां पे कनेक्शन देखो, और आप फिर से स्टैचू हो गए हो। आ जाओ, आप फिर से स्टैचू हो गए हो। संदीप जी आइए मेहरबान बैठिए चैन चैन, शौक से लीजिए जी इश्क की इम्तिहान। आइए मेहरबान बैठिए चैन चैन, शौक से लीजिए जी इश्क की इम्तिहान। आइए मेहरबान। हाय, ऐसा नहीं सोचा था कि होगा। ये क्या हो रहा है संदीप जी, कितने मैंने गाने गा दिए, अब तो आ जाइए आप। So Sharmita Dasgupta says, great singing, my favorite too. And Shovik Chakravarti says, wonderful Didi. Thank you, Shovik. Gauri Divakar says, Kera curfew. और सौम्य शुक्ला कह रही है अलकनंदा कथक का प्रोफाइल पे है, नॉट ऑन दी एफबी पेज, नॉट व्हाट एफबी पेज पे ही तो है अलकनंदा के प्रोफाइल पे। And Tulika says, wow, voice nice. And Maharani says, enjoying the melody. Yes, Sudha Tikku is also there. Hi, Sudha ji. हाँ संदीप जी आ जाओ, बहुत Can इंतजार you see करवा me? दिया। I can't see you. I can see your award. I can see your award. Priya Bajpai is also there. And Sharmita Rasuda says, Didi, tell Sandeep ji to accept your tag in his FB profile. Sandeep ji, आपने मेरा tag accept नहीं किया, इसलिए आपके प्रोफाइल पे नहीं आ रहा। आप मेरा टैग एक्सेप्ट करो प्लीज, एक्सेप्ट माय टैग विच इज देयर। ये मैं क्या संदीप जी के पेज पे शेयर कर सकती हूँ, ये नहीं पता मुझे। अब मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ, मैं वेट कर रही हूँ संदीप जी का। और कोई गाना याद आ रहा है तो बताइए, नहीं तो कोई गाना चाहता है तो बताइए प्लीज। एंड यार कोई तो आओ, कोई तो आओ मेरे पास। हाय राम, ये क्या हो रहा है? जया प्रियदर्शनी है, दीदी ग्रेट सिंगिंग। हेलो भैया, अरे भैया तो मत बोलो, क्या कर रहे हो तुम लोग? ना लड़कियां ना सारा बर्बाद कर देते हो ऐसे। दिल्ली, अरे इन्हीं क्या बोल रहा है, दिल्ली में होता है 9 से 5 बजे, क्या कर्फ्यू? तो ये क्या प्रॉब्लम हो रहा है? आर वी स्टिल लाइव? कहाँ पे है? वेयर इज इट? कौन सा व्हाट्सएप, किसका व्हाट्सएप देखो बेटा? दिस इज म्यूट, इज दिस म्यूट? Okay, let me do this and let's see how it goes on further. Uh, I don't know, there's some problem. I didn't want this problem to happen, but you know, this is technology and it happens. And Joy is trying to help me out, but not much because he doesn't want to come onto the mic दिखा तो तब तक। अच्छा माइक दिखा दूँ, ये माइक बहुत हॉट सा सेक्सी सा है, जो कि मुझे इन्हीं सिंह ने, मेरे दोस्त ने मेरे को भेजा था लिंक की, ये वाला खरीदो एंड योर वॉइस विल बी मोर क्लियर। एंड वी हैव जॉय कॉलिंग अप। हेलो जॉय। यस यस right, and he's here. I think Sandeep ji is back with us, and I hope we will have a further on chat with him and keep it going. Please join in. मुझे लगता है उनके वहाँ पे बॉम्बे में नेटवर्क का कुछ इशू है। दीदी आपकी नजरों ने समझा
क्या गा दीजिए। आपकी नजरों ने समझा प्यार। हाँ ऋतुपर्णा बस। क्या हुआ? नेटवर्क इश्यूज संदीप जी, नेटवर्क इश्यूज। हेलो, लैगिंग। हाँ, नेटवर्क इश्यूज। अभी भी है, पता है संदीप जी, अभी भी आपके वहां पे अब। हाँ अब कुछ दिख रहा है? आप दिख रहे हो, पर आप स्टैचू पोज में दिख रहे हो। ऐसे तो दिख बहुत अच्छे रहे हो, पर मतलब स्टैचू पोज में दिख रहे हो आप मुझे। मैं आपको सुन पा रही हूँ। हाँ थोड़े से नेटवर्क देखो, नेटवर्क। हाँ, अब आ गए हो, आ गए हो, आ गए, आ गए। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। हाँ आ there गया। you are. हाँ, what happened man? What was the No, just problem? I don't know, suddenly my internet dropped. I don't know, अभी मैं मेरे मोबाइल से कनेक्ट किया मैंने, पता नहीं। Right, good, good, you did that. पता नहीं मैंने कितने गाने गा दिए आपके पीछे। अच्छा ना, लोगों को क्या? लोगों की फरमाइश आ रही है और मैं गाने गा रही हूँ। हाँ, तो अभिमन्यु वाला आपका। I hope हमारे अभी भी थोड़ा लैगिंग है, पता है संदीप जी, अभी भी थोड़ा लैगिंग है आपके इसमें, आपके साइड से अभी भी थोड़ा सा लैगिंग है। Let's do one thing. Let's reconnect. Both of us. Let's reconnect. Both of us. Let's reconnect again. Hi guys, don't go away anywhere. We will be back in a few moments with the season again, and just let me have a little. तो अभिमन्यु एक ऐसा प्रोडक्शन कि I can see you properly. Yeah, now now you're audible and visible. Yes. हाँ, अभिमन्यु का production. There's still a problem. There's this technical hitch in the whole thing. So whenever I say technical hitch, he's back. Sandeep ji, let's join back again. Let's join back again. Let's both of us join back again. Let's both of us join back again. Let's both of us join back again.